डायना एक वर्णन करती है यहाँ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में, यहाँ के 52 शक्तिपीठों के बारे में। तो इसलिए इट हैज बीन ए पैशन, ए फैंटेसी, ए फैसिनेशन फॉर मेनी मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल्स। भारत ने दुनिया को योगदान दिया है। दुनिया के अन्य सभ्यताएं, राष्ट्र, जन समुदाय जिस प्रकार अपने अपने किसी न किसी प्रकार के योगदान मानवता के लिए, मानव कुल के लिए दिए हैं, भारत हमेशा इसमें आगे रहा है। एंड यू आस्क ए क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, एंड ऑल द यंगस्टर्स विल डेफिनेटली से इट इज जीरो एंड नो कंट्रीब्यूशन, इज इट? नो, zero is the contribution of India. Mathematics, arithmetic. Will Durant says, one of the famous historians the world has seen, Will Durant ने कहा, Sanskrit is the origin of our languages. We wrote India for our democracy because of India's panchayat system. We have taken clue from Buddhism of India for our Christianity. India is the cradle for our grammar. India is the cradle for our mathematics. In every sense, India is the mother of us all. India हमारे लिए जगत जननी है, हम सबकी मां है. Will Durant, the American historian, writes. तो इस प्रकार भारत के योगदान के बारे में, भारत के महानता के बारे में कितने ही लोगों ने कहा है। मार्क ट्वेन ने कहा, इंडिया इज द मदर ऑफ आवर कल्चर, इंडिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ आवर लेजेंड्स, इंडिया इज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ आवर ट्रेडिशंस। तो इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में, मनुष्य के जीवन के हर आयाम में भारत के योगदान तो है, बट दिस इज पास्ट। लेकिन अभी 10,000 वर्षों के इतिहास भारत के हैं, ऐसे नवरत्न राजाराम और डेविड फ्रॉले, दो लेखकों ने अक्षरधाम से प्रकाशित 10,000 years of cultural heritage इस पुस्तक में लिखते हैं। 10,000 years of culture। When we say India, which is our India? It's geographical India, the political India, cultural India. Dr. S. Radhakrishnan, who was the president of India, was the editor of a series of books, volumes of books published by Ramakrishna Mission, Cultural Heritage of India. There he writes, when we say India, it is not the India of political or geographical India. It crosses the political boundaries and the political suzerainty. It is the cultural India that we refer to. तो इसलिए भारत आज जो इंडिया कहते हैं उसके अंदर सीमित समेट नहीं है। तो इसलिए भारत अपने आप में आज के भारत से भी एक विशाल भूमि क्षेत्र में अपने आप को पाता है। लेकिन हम आज के इंडिया के बारे में ही सोचे तो भारत के एक इसके आइडेंटिटी, जैसे मैंने सेक्रेट जियोग्राफी के संदर्भ में कहा, उसके रिव्यू के लिखते हुए मीरा नंदा ऑथर हैज रिटन द गॉड मार्केट। She says globalization has made India richer and to some extent materialistic, but it is also making her more religious. Globalization has been good for gods. That is her comment. As India is liberalizing and globalizing its economy, the country is experiencing a rising tide of popular Hinduism, which is leaving no social segment and no public institution untouched. India has 2.5 million places of worship, but 1.5 million only schools, 75,000 hospitals. Last 2-3 years,
All our package tours, 50% of them was pilgrimage, and rest was pleasure trips. Balaji temple was visited by 23 million visitors, whereas Vaishno Devi had 17 million devotees. So this is an example. But on the other side, India has the variety, the diversity, 1652 languages, dialects, more than 15 scripts, and 125 crores of population. इंडिया की विशेषताएं बहुत सारे हैं कि ना भारत के बारे में समझते समय हमें कुछ बातों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। भारत की विशेषताएं क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी is one of its foremost identity. विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता है। कितने प्रकार की भाषाएं, विश्व के कई प्रकार के जो पंथ संप्रदाय हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या के पंथ संप्रदायों के जन्मभूमि भारत है। और कहीं क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम के बारे में भी उसके ओरिजिन भारत है, ऐसे लोग कहते हैं। जैसे हजरत मोहम्मद पैगंबर के मां ग्रैंड मदर वो भारत से गई थी, कहते हैं। इतिहास कितने सच है मुझे मालूम नहीं। जीसस क्राइस्ट इन हिज लाइफ 12 to 15 years, nobody knows where he was, and there are umpteen number of books which explain, to give details, that Jesus Christ lived in India during those missing years of his life, 12 to 15 years. भारत की विशेषता ये विविधता है। इतने प्रकार के डाइवर्सिटी, इतने वैरायटी होने के बाद भी भारत एक है। वो कारगिल हो, क्रिकेट हो, कुंभ हो, भारत के लोग एक वॉइस से, एक आवाज से खड़े होते हैं। भारत में 3000 से सारी जातियां हैं। भारत के अंदर जाति प्रथा है, छुआछूत है। एक दूसरे से को छूने के लिए आज भी गांवों में शायद लोग तैयार नहीं होते। जाति भावना और जाति के आचरण आज भी हैं, लेकिन वही लोग जब गंगा के तट पर कुंभ मेला में एकत्र आते हैं, लाखों की करोड़ों की संख्या में, दे लिव एज वन फैमिली। What an amazing thing! Who has planned, who designed these things of Kumbh Melas and pilgrimages, these pilgrimages and Kumbh Melas, they have kept India united for millennia. ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की एक ऐसी विशेषता है। इसलिए सांस्कृतिक एकात्मता, वन नेशन, वन पीपल, वन कल्चर, यह बार बार अनुभव में आता है। हिंदुस्तान की सेना इसकी एक पहचान है। भारत के क्रिकेट इसके एक मॉडर्न एपिटोमी है।